فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دی، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے، تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو حدیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر حدیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی نا، تصوف، سنا ہے نا یہ لفظ تصوف کا، صوفی تصوف۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں تصوف کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن و حدیث میں کہاں تصوف کا لکھا ہوا ہے۔ یہ تصوف ہے کیا؟ جب اسلامی سلطنتیں دنیا میں پھیلی ہیں تو لوگوں کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو گیا اور دین کی مخالفت مشکل ہو گئی، سمجھ رہے؟ کیونکہ ہر جگہ اسلامی حکومت ہے، چوری کرنا مشکل، زنا کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، نکاح کرنا آسان، داڑھی رکھنا آسان، نماز پڑھنا آسان۔ تو صحابہ کے دور میں
جو قربانی دے کے ایمان لانے والے لوگوں کی اصلاح دل کی ہوتی تھی وہ اصلاح لوگوں کی ہونا بند ہو گئی. اب ایک عادت پڑ جاتی ہے نا کسی چیز کی تو وہ رگڑے نہیں لگتے. تو صوفیاء کرام نے کیا کیا کہ بھئی مصنوعی مجاہدے کروانا شروع کروائے. ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ عمل کیا جائے گا تو یہ کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ انسان ولی اللہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک دو چیزوں کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلے گی. اس وقت تک اللہ کی نہیں آ سکتی. وہ ہے حب مال اور حب جاہ. یہ دو یاد کر لیں. حب مال کا مطلب روکھڑے سے محبت, روکھڑا سمجھتے, پیسے سے محبت. اور دوسری چیز ہے جاہ, عزت اور شہرت کی لالچ, بڑا بننے کا شوق. بڑا سے مراد ہر محفل میں میری ٹانگ اونچی رہے. گناہ تو پہلے سبھی چھوڑا کرتے تھے, سبھی بچتے تھے, لیکن یہ جو دل ہے نا, دل یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. بہت سے لوگ بظاہر بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن آپ جب پیسوں کے معاملات کرو تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں دولت کی محبت کے پورے پورے گٹر ابل رہے ہیں. یہ کہے گا کہ میری کھال چلی جائے مگر میرا پیسہ نہ جائے. تو صوفیاء کرام اس کی کوشش کرتے تھے. جیسے میڈیکل سائنس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, پہلے تو ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے, یعنی یہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, ڈاکٹر تو ہمیشہ سے حکیم ہوتے تھے پہلے. لیکن اب کیا ہے کہ بہت سارے تجربوں کے بعد دوائیں ایجاد ہو گئی, بھئی دماغی طاقت کے لیے, یہ فلانی بیماری کے لیے. ابھی کورونا کے تجربے سے گزر رہے, تو ہو سکتا ہے اگلے سال کوئی دوا ایجاد ہو جائے, لیکن وہ ایجاد ہونے میں بھی کئی لوگوں کے تجربے ہوں گے پہلے. تو ایسے ہی باطن کی اصلاح کے لیے اہل اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ظاہری طور پر تو نیک بن جاتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں, اور جو ٹوٹے پھوٹے شریعت کے احکام ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن اندر سے معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب. اور اسلام نام ہے ظاہر اور باطن. یہ جو 6 فٹ کا 5.5 فٹ کی باڈی ہے اس کو بھی ٹھیک کرو, اور اندر سے دل کو بھی ٹھیک کرو. اور اس باڈی کے اور اندر کے دل کے ٹھیک ہونے میں فرق کیا ہے؟ اوپر سے باڈی صرف ٹھیک ہو جائے نا, اندر سے حساب ٹھیک نہ ہو, سکون تو ملے گا ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور باڈی بھی ہر وقت اس بات کا امکان رہے گا کوئی غلط کام شروع کر دے. اور اندر کے سیٹ اپ کو درست کر لیا نا تو ایسے ہے جیسے GHQ پہ قبضہ ہو گیا. بھائی جب بغاوت ہوتی ہے, مارشاء اللہ آتا ہے, فوج کے اقتدار سنبھالتی ہے, تو سب سے پہلے کہاں قبضہ ہوتا ہے؟ یعنی سارا کنٹرول GHQ کا آ جاتا ہے نا. جتنے بھی میڈیا کے ذرائع, جنرل مشرف نے نہیں جب وہ کیا تھا سارا, تو جتنے بھی پیک کے عہدے ہیں, پیک ایسے مقامات ہیں, حساس ادارے, سب سے پہلے ان کو کنٹرول میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا خبردار سنو, ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے, جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. دیکھو یہ مادی اعتبار سے بھی ہے, روحانی اعتبار سے بھی, ظاہری اعتبار سے بھی. اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دل سب سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا دل گھبرا جاتا ہے جلدی, دل صحیح نبض چیک کی تو وہ 100 تک بھاگ ہی جا رہا ہے, نبض دھڑک رہی ہوتی ہے لوگوں کی. میں حیران ہوتا ہوں, کسی کی 92, جوان لوگوں کی, کوئی 90 پہ آیا ہوا ہے, کوئی 92 پہ آیا ہوا ہے, کوئی 80-85 پہ آیا ہوا ہے. جوان آدمی کی جو نبض ہے نا وہ 72 سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بیمار ہیں, لیکن سیٹنگ معیاری نہیں. 72 بہت, اور جتنا کم ہوگی اس کا مطلب کیا ہے, دل کیا ہے, بول لو نا کیا جا رہا ہے, خاندانی. بھائی آپ اپنی نا نبض تمیز سے کسی وقت بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے, تو 72 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے, بلڈ پریشر لو, وہ نہیں, نارمل کنڈیشن میں. میں بھی ایک ایتھلیٹ سے ملا ہوں, اس کی نبض کے 55 ہے, 55. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے. تھوڑی سی ورکنگ میں کام 72 والا ہو رہا ہے.
ارے جس کا دل 55 دفعہ دھڑک رہا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی, تو اس کا مطلب ہے وہ 55 دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے 72 دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس کا مطلب صحت مند کس کا ہے؟ 55 والے کا, 72 والے کا؟ 55 والے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 55 تو خیر بہت ہی کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں کا ہی ہوگا, لیکن 65 70 ہٹو بچوں ہے. اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے, اس کو سیٹنگ پہ لائیں گے کیسے؟ یہ آتا ہے جاگنگ سے اور ایکسرسائز سے. دل کو دھڑکائیں, خوب ورزش کریں, اسٹیمنا بڑھائیں اپنا, تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کس پہ آ جائے گا؟ سیٹنگ پہ. خیر ابھی ہم کوئی اس جسمانی دل کی بات کے لیے یہاں بیٹھے نہیں ہیں, وہ تو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے. اور افسوس کی بات اکثر ڈاکٹروں کا 90 دفعہ دھڑک رہے ہیں. ڈاکٹر صحت کے نسخے بتاتے تو ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. بتا رہے ہوں گے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ, اور آپ جاؤ گے تو سگریٹ پی رہے ہوں گے وہ. تو اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں پہ عمل کیا کرو, ان کی زندگی کو فالو مت کرو. سمجھ رہے ہو؟ باتیں اچھی کرتے ہیں. تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. انسان کو سکون نہیں ملتا, انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے. ہم پھر اس ظاہر پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے, انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. اتنے دلائل سے سمجھایا, نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ, اپنا مکان تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو وہ دلائل ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے. وہ ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں, وہ W11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ ہی نہیں ہے کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اترنا ہے تو نے. ایک تو W11 لانڈی جاتی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشہ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھاؤ گے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. نہیں بٹھاؤ گے تو وہ بحث کے آگے بین بجانا, بولتے رہو, لوگ بولیں گے بیوقوف ہے, پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے, بولنے میں مشکل ہو رہی ہے, بیٹھا ہوا ایک دفعہ طبیعت سے جو نا کھنکھارنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح. اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو. کیا خیال ہے؟ کولیسٹرول نہ ہو, بلاکیج نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح دل ہے. تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. اور عجیب بات بتاؤں, روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے. وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. وہ پھر تھوڑے بہت انڈے پراٹھے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح, وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے. کچھ بد پرہیزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آ کے کہتا ہے بھائی معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا, تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ کرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے کہ دل کو 2 محبتوں سے پاک کر لو. 2 محبتیں دل سے کیا کر دو؟ کک آؤٹ. کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں نکال لو تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں ہے. سب کچھ کر لیں گے, یہ 2 کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے مال کی محبت, جس کو تصوف کی اصطلاح میں حب مال کہتے ہیں. حب کا معنی عربی میں محبت. اور دوسرا جاہ, وجاہت کہتے ہیں نا, وجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو, جاہ کہتے ہیں عزت. عزت کی لالچ. لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں؟ بڑا, میری عزت ہو. مال کی محبت اور کیا؟ جاہ کی محبت. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مال کی محبت تو ایک فطری چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے سے اگر ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ پیسے سے گولا گنڈا بھی آ رہا ہے, گٹکا بھی اسی سے آ رہا ہے, پان بھی اسی سے آ رہا ہے, گھر بھی اسی سے مل رہا ہے, گاڑی بھی اسی سے آ رہی ہے, اور بیوی اگر خوش ہے تو وہ بھی کس سے؟ آپ کے پیسے ختم ہو جائے. آپ دیکھو بچے بھی ابو کو ابو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ شناختی کارڈ میں یہ میری
वालदा के शौहर के तौर पे लिखे हुए हैं, ना 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 ना, बल्कि इसलिए कि ये जब पैसे मांगो तो क्या करते हैं, पैसे देते हैं। अब्बू की डेफिनेशन यही है आजकल। वो नादरा बादरा के आप कागजात लाके बच्चों को दिखा दो, देखो बेटा मैं तुम्हारा अब्बा हूं, बिल्कुल इस पे मेरे पास गवाह भी है कि शादी हुई थी और ये सब, देखो बच्चा मानेगा, एहतराम शुरू करेगा। बच्चा कहेगा अब्बा पैसे हैं ठीक है, पैसे दे रहे हो, अगर दे रहे हो ये डॉक्यूमेंट दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो पैसे से जब इतने काम होते हैं, पैसे से जब इतने सारे काम होते हैं, तो भाई इससे मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज है ना। तो ये क्यों इस्लाम कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो? हाय हाय कैसे समझाएं, सवाल समझ में आ रहा है भाई? ये हमारा भांजा है ना, चश्मा पहना हुआ है आपने, अगर ये चश्मा आपका गुम जाए कितनी टेंशन में आओगे कि नहीं आओगे? हर वक्त फिक्र के चश्मा कहाँ है, और वो चश्मा तलाश करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चश्मे के बगैर चश्मा तलाश कैसे करेगा आदमी? भाई वो चश्मा तो नजर ही नहीं आएगा ना। तो ये चश्मा क्या फ्री में मिला था? ये किससे आया है? पैसों से आया। तो सारे काम रोटी पैसों से खरीदी जाती है, तो सारे काम जब पैसे से हो रहे हैं, फिर ये कहना कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसका कोई मतलब होगा ना, या तो इस्लाम ने ऐसी बात कर दी है जो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी चीज है हुब्बे जाह, बड़ा बनने का शौक, इसकी मोहब्बत दिल से निकालो। भाई क्यों निकालें? बड़ा बनने का शौक ना होता तो आर्मी में लोग कमीशन ऑफिसर जाते हैं भाई। भाई हर आदमी कहता है यार आम फौजी भर्ती हो जाओ, बच्चे को कमीशन ऑफिसर भेजने की जरूरत नहीं है। वही वो इसलिए तो भेजते हैं कि ताकि क्या बने, बड़ा बने। लोग किसी को ऑप्शन दिया जाता है कि डॉक्टर बनाना है या टमाटर बेचने हैं, अगर ऑप्शन दिया जाए तो हर आदमी क्या चाहेगा, मेरा बच्चा क्या बने, डॉक्टर बने। खुद भी चाहेगा क्या बनूं, क्योंकि उसकी इज्जत बोलो भाई ज्यादा। तो बड़ा बनने का शौक है, फिर तो कोई सियासतदान इलेक्शन में नहीं खड़ा हो क्योंकि उसको वजीर आजम बनने का शौक है। वजीर आजम तो बड़ा होता है, तो बड़ा बनने का शौक है, तो इसको तो वोट वैसे ही ना दो, इसको बड़ा बनने का शौक है। फिर किसको दे भाई? जो खड़े नहीं हो रहे इलेक्शन में उनको देंगे, तो उनको दें कैसे जब वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे? क्या ख्याल है भाई? तो इसका मतलब है भाई ये जो इस्लाम ने कहा है कि दिल से माल की मोहब्बत भी निकालो और जाह की भी, इसका कोई मतलब है जो समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो क्या है वो हम बताते हैं आपको। उसको कुरान और सुन्नत ही ने मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया है। पैसे की मोहब्बत, देखो इस्लाम कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको मुअतदिल उम्मत बनाया है, तो हर चीज में एतदाल अच्छा है। तो इस्लाम जब कहता है कि पैसे की मोहब्बत दिल से निकालो, क्या मतलब? वो मोहब्बत जो एतदाल से, बोलो भाई, ज्यादा हो। जाह की मोहब्बत दिल से निकालो, वो मोहब्बत जो एतदाल से ज्यादा। आज मुझे किसी ने बताया कि मेरी जो 4 शादियों वाली मादरत के साथ किताब है, बहुत से लोग उससे इख्तिबासात ले लेके ना अपने नाम से शाया कर रहे हैं। ये क्या बड़ा बनने का शौक या शोहरत का शौक है या नहीं है? कि जिसकी तहरीर है आपने वहां से उठाई, 2-4 लफ्ज आगे पीछे करके किससे शाया किया, तो ये बड़ा बनने की मोहब्बत नहीं है, बल्कि बड़ा बनने की हवस है। समझ रहे हो? ये जितने कॉपीराइट्स दूसरे की किताब उठाई अपने नाम से, खैर मुझे जिसने बताया मैंने कहा कर दे यार, अपने नाम से कर दो भले, इससे फायदा ये होगा, बात तो फैलेगी ना। अरे बात तो फैलेगी, भले हमारे नाम से नहीं आपके नाम से फैल जाए, मकसद तो ये है कि फैल जाए बात। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है, इस पर कोई तकलीफ नहीं है, बात फैले। लेकिन लोग ऐसा कर रहे होते हैं, उसकी किताब उठा दी, अपने नाम से शाया कर दी, काम किसी और ने किया, आप चाहते हो कि किसके खाते में डाला जाए? मेरे खाते में। वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, अल्लाह ने फरमाया जो अहले किताब थे ना, इनके उलमा में जो खराबी आई है, बड़ी खराबी ये थी यहूद और नसारा के उलमा में कि वो ये चाहते थे कि किसी और का काम भी किसके खाते में डाला जाए? हमारे खाते में। जो काम हमने नहीं किया उस पे भी लोग हमारी तारीफें करें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो हम में से हर शख्स दौलत से भी मोहब्बत करता है, लेकिन इतनी नहीं जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, उससे ज्यादा। हम में से हर शख्स बड़ा भी बनना चाहता है और बड़ाई का शौक भी हवस की हद तक पहुंचा हुआ है, इसलिए बड़ा बनने के लिए जायज तरीके नहीं बल्कि गैर अखलाकी, गैर शाइस्ता तरीके इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। कुछ तरीके नाजायज नहीं होते मगर गैर अखलाकी होते हैं, वो भी गलत हैं। देखो आपने दुकानदारों को देखा होगा कि आप किसी मार्केट से गुजरे तो गुजरना अजाब बन जाता है, पीछे तक आ रहे होते हैं। देखा होगा ना कपड़ा बेचने वाला,
ओ भाई आप जा रहे हैं, हाँ सूफी साहब जरा 2 मिनट बात सुन लें, बैठे तो सही यार, कुर्सी लेकर आवे, बैठे तो सही। ओ भाई मैं अपने काम से जा रहा हूँ, सर आप बैठे तो सही। मकसद ये किसी तरह घसीट के इस कमबख्त को बिठाओ, शायद कुछ कपड़ा खरीद ले। तो ये पैसे की मोहब्बत नहीं है, बल्कि क्या है, हवस। ओ भाई तमीज से इज्जत के साथ जितना कमा सकते हो कमाओ, पतली गली से निकलो। मैं अक्सर एक वाकया बयान करता हूं, मैंने बहुत पहले कई दफा बयान किया, बहुत दिन हो गए। मैं जब यहां इमामत के लिए नया आया, 2006 या 7 की बात है, तो यहां एक रेडी वाला था, सब्जी बेचा करता था। आजकल ना लोगों में ये चीज खत्म हो रही है। मैं उससे अक्सर सब्जी लिया करता, इतनी बड़ी दाढ़ी माशाल्लाह, वो बेचारा अफगानी नहीं होते गरीब से बेचारे, वो उस तरह का अफगानी था, वो इतनी बड़ी दाढ़ी और वो सब्जी बेच रहा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं, वो रेडी ही उसकी कुल कायनात। तो मैं उसके हालात जानता था। एक दिन क्या हुआ, एक खातून जो उसकी पुराने कस्टमर को तो लोग दुनिया छोड़ देते हैं, आजकल कस्टमर नहीं छोड़ते, वो पुरानी कस्टमर सब्जी लेकर आई वापस करने के लिए और कहने लगी कि आपने मुझे झूठ बोलकर ये सब्जी बेची है, झूठ बोल के। समझ में आ रही है बात? मिसाल के तौर पर आपने कहा था गले हुए नहीं है तो ये गले हुए हैं, तो फलाना ढिमकाना, कुछ इस तरह की बात थी। अब जाहिर है पुराना वाकया हो गया। उसने कहा कि बाजी मैं यहां कई सालों से सब्जी बेच रहा हूं, गलत फहमी हो सकती है लेकिन मैं झूठ बोलने वाला। उसने कहा नहीं तुम झूठे हो। इज्जतदार आदमी को जो है ना ये ताना बर्दाश्त नहीं होता, जो वाकई झूठ नहीं बोलता ना, जो झूठ बोलता है वो तो कहता है चल चलाती रहे, बोलती रहे, सब्जी मुझसे ही लेना। वो कह रहा है बाजी गलत फहमी हो गई होगी, गलती से डल गया होगा, ये एक करेला खराब डल गया मुझसे गलती से, मैं इंसान हूं, आपको मैं दूसरी सब्जी दे देता हूं। वो कह रही थी हाँ मुझे दूसरी सब्जी दो, ये वाली वापस ले लो। सर मैं वापस ले लेता हूं, आपको मैं दूसरी सब्जी दे देता हूं, ताजा सब्जी, लेकिन ये गलती से मुझसे डल गया होगा, वैसे भी आप पुरानी कस्टमर हैं, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन वो खातून पता नहीं कहीं तैश में कह रही नहीं तुमने झूठ बोला है, तुम ये मानो। उसने कहा सब्जी यहां रखो, पतली गली से निकलो। वो कहने लगी अच्छा चलो लाओ छोड़ो दे दो। उसने कहा नहीं अब नहीं मिलेगी, जाओ। अब वो भाई उस खातून ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। उस बंदे ने कहा कि अब कयामत तक नहीं मिलेगी, ऐसी की तैसी साले। नहीं आ रही बात? मुमकिन है जो वहां खड़े हुए उसको देख रहे हो वो कहें यार ये बदअखलाक है। मैंने कहा ये बदअखलाक नहीं है, इसके अखलाक को सैल्यूट करने का दिल कर रहा है, खानदानी है ये ना। ओ भाई तुम्हें 10 दफा बता दिया हम झूठे नहीं है, फिर भी एक ही ताना झूठ झूठ झूठ। उसने कहा दफा हो यहां से, ऐसी की तैसी। मैंने कहा यार आपकी पुरानी कस्टमर है, जाओ कस्टमर की ऐसी की तैसी, पहले इज्जत हो उसके बाद क्या हो। भाई इस्लाम में इज्जत पहले है, पैसा बाद में। कह रहे ये ताना हमको आज तक किसी ने नहीं दिया कि हम झूठ बोलते हैं। कह रहे झूठ बोलना होता हम रेडी लगा रहे होते हैं यहाँ पे, हराम कमाना होता। मुझे उसका ऐसा एटीट्यूड इतना खानदानी लगा ना, मैंने कहा यार ये बंदा बजाहिर बद अखलाक है मगर अखलाक के आला मयार पर पहुंचा हुआ है। इसलिए कि भाई कमा रहे हैं, चाहे टमाटर बेच रहे हैं, मगर इज्जत के साथ। एक दफा हो जाता है, उस खातून ने कहा झूठ बोल रहा है, 2 दफा 3 दफा 4 दफा आदमी को तैश दिला दी। उसने कहा नहीं। अब देखो जो गैर खानदानी आदमी होता है ना, जिसके दिल में टमाटर की लालच, वो पैसों की लालच होती, पैसे मिले, वो कुछ भी कर देती ना, फिर भी आंटी को मनाने घर चला जाता, आंटी को मनाने चला जाता। घर देखे सब्जी मुझसे ही लिया करें, भले आप मुझे झूठा बोले, कुछ भी चोर बोले, कुछ भी बोले, लेकिन आंटी कद्दू किससे खरीद रहे हैं आपने, क्योंकि कद्दू के पैसे मेरी जेब में आने चाहिए। हमारे यहाँ कस्टमर को ना घर तक लेके, घर पहुंच रहे उसके। ओ भाई तुमने दुकान खोल ली, बैठ गए, सबको पता है कपड़े की दुकान है, वहां भी मिलता है तो तुम्हारे पास भी मिलता है, बैठ जाओ आराम से यार। वो पूरा पीछे तक जा रहा है, गली के किनारे तक जाएगा। इसका मतलब तुम पैसों की मोहब्बत नहीं है बल्कि हवस है तुम्हारे अंदर। भाई देखो मुल्तान दोबारा आते हैं हम लोग, वो जो मुल्तान पे बंदा उतारा था ना हमने, अब वो बंदा इंशाल्लाह हर मिसाल में हमारे साथ रहेगा। मोहब्बत हो गई आपको उस मुल्तान, आप पेशावर जा रहे थे, वो कहां जा रहा था, मुल्तान। ठीक है इंसान को मोहब्बत होती है, होनी भी चाहिए कि इंसान आपके सामने बैठा हुआ है, हम सफर है आपका, और हेलो हाय गपशप। अब आपको इतनी मोहब्बत है कि आप मुल्तान उसको घर छोड़ने जा रहे हैं। आप बोले मैं अगली ट्रेन से पेशावर चला जाऊंगा, पहले मैं आपको क्या करूं, घर छोड़ के आ जाऊं, और आप चले गए। तो वो मुल्तान वाले के अब्बा निकले बाहर, कहने लगे ये कौन है? क्या ये कराची से एक दोस्त मेरे सवार हुए थे, जा तो ये पेशावर रहे हैं, लेकिन इनको मुझसे इतनी मोहब्बत हुई है कि ये बाकायदा ट्रेन में उतर के मुल्तान तक, मेरे घर तक अब मुझे पहुंचाने आए हैं और अब चले जाएंगे। कह गए ये मोहब्बत नहीं है, इसका दिमाग क्या हो गया है, ये बावला है, ये पागल हो गया है, ये तो मुझे कुछ और ही कहानी लग रही है। इस तरह की बातें करेगा ना भाई, ये कहानी मुझे बेटा, ये बंदा एबनॉर्मल है,
تو इनका मामू लगता है, तो इनका चाचा लगता है, तो क्या है जो इतनी मोहब्बत दे रहा है भाई? ठीक है, सफर है, मुल्तान पे उतरे, पतली गली से निकले आगे। तो ये मुल्तान पे जो उतर रहा है उसके बारे में तो ये समझ में आती है। तो मोहब्बत तो उसके अलावा भी 10 चीजों से होती है ना भाई, पैसे से भी होती है, इज्जत से भी इंसान को मोहब्बत होती है। तो उसकी भी कोई लिमिट होगी कि नहीं होगी, या वो उसकी हुदूद ही नहीं है? हर चीज से मोहब्बत की कुछ हुदूद है जो अकल भी बताती है और मजहब भी बताता है। अगर वो मोहब्बत हद से तजावुज करेगी तो वो मोहब्बत नेमत के बजाय अजाब और एबनॉर्मलिटी बन जाएगी वो, और उस पर क़यामत में सजा मिलेगी आपको। ऐसे टोपियां करा रहे होते हैं, आप देखो ना दुकानदारों को कैसे बात करते हैं अपना माल बेचने के लिए, ऐसे तमहीद शुरू करेगा, ऐसे शुरू करेगा। अभी मैंने मंडी में कुछ इज्तिमाई जानवर खरीदने थे तो तजर्बे हुए, बंदा ऐसे लगता है जैसे इससे ज्यादा नेक दुनिया में कोई है ही नहीं, वहीं से टोपी शुरू। तो इज्जत के साथ जितना पैसा आ जाए, इज्जत के साथ उस पे इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, हवस ना करे। देखो हवस की एक और अलामत बताऊं, हवस की एक अलामत यह है कि दूसरे की जेब पे नजर। आपके साथ उठने बैठने वाला, आपके ताल्लुक वाला आदमी को करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, एकदम आपके जहन में ख्यालात आना शुरू हो गए कि ये मुझे थोड़ा सा क्या कर दे, हदिया दे। मैं एक बात आपको ये भी बताऊं कि लोग अपनी आमदन जो किसी दूसरे को बताते नहीं है ना, उसमें उनको डर होता है कि ये मुझसे पैसे मांग लेगा। ये मुआशरे के खराब होने की अलामत है कि कोई भी आदमी अपनी खुल के आमदन किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? मुआशरे में खराबी क्या है? ज्यादा है। बता क्यों नहीं रहे? मांगेगा पैसे ना। लोग दीनदारों को बताते हैं अपनी आमदन, बैंक अकाउंट कितने से सिक्योर होते हैं ना। अरे आप बैंक में मैनेजर को फोन करो, यार मेरे पड़ोस में या मेरा बड़ा भाई है, बहुत नेक आदमी है, जरा बताना उसके अकाउंट में कितने पैसे। अब्बा फोन करे ना बैंक में कि मेरे बेटे के अकाउंट में कितने पैसे हैं, बैंक वाला बताएगा? इल्लीगल है, नहीं बताएगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, वो नहीं बताएगा आपको, भाई इल्लीगल है, केस हो जाएगा मेरे खिलाफ। तो इतना सिक्योर क्यों रखा जाता है? उनकी और बहुत सारी वजूहात है, उनमें एक बड़ी वजह यह है कि हर आदमी चाहता है मेरी पैंट में जितने पैसे हैं दूसरे को पता ना चले। मांगेगा कमबख्त, नजर लगा के बैठ जाएगा, हक नहीं देगा मेरा। मैंने एक दफा हदियों पे बयान किया कि हदाया दिया करें। एक खातून बेचारी की कमबख्ती आ गई मेरे बयान सुन के, उसने लिफाफे में कुछ पैसे डाल के अपने बड़े भाई को हदिया दे दिया। हालांकि उस बेचारी की आमदन नहीं थी। उसने कहा रिश्तेदारी जोड़नी चाहिए। मेरे पास उन मोहतरमा का फोन आया कि मेरी विरासत मेरा बड़ा भाई देने का फैसला कर चुका था। उसने कहा तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, लिहाजा विरासत को और ज्यादा डिले। हम तो समझते तुम मोहताज हो, तुम तो हदिया बांटती फिर रही हो। क्या करें यार, कैसे समझाएं मेरे भाई, ये हो रहा है। आप हदिया दे के देखो, आपके रिश्तेदार आपके साथ ताबुन खत्म, बोलेंगे तो बहुत पैसे वाला है भाई। अरे तुम ताबुन कर रहे थे, पैसे वाला है या नहीं है, तुम तो बहन भाई होने की वजह से कर रहे हो। और उसकी विरासत तो वो करोड़पति हो या जीरो, उसका हक तो उसको देना पड़ेगा ना। विरासत किस बेस पे आप कब्जा करके बैठे हुए हो? नहीं यार ये बात क्या करें यार, मामला करके देखे पैसों का किसी के साथ। वो कहेगा तुम्हें जरूरत क्या है पैसों की? ओ भाई तूने जब मेरा तेरे से एग्रीमेंट हुआ है तो तुझे इससे क्या वास्ता कि मुझे जरूरत है या नहीं है? नहीं देते लोग पैसा, अबे उसके पास तो बहुत पैसा है, पैसे हदिया दो ना, पैसा देना छोड़ देंगे आपको। तो मैंने उस खातून से कहा, मैंने मुझे बयान में ना इस तजर्बे के बाद एक लफ्ज आइंदा के लिए ऐड करूंगा मैं कि बहनों को चाहिए भाइयों को हदिया दें, बशर्ते के भाई गैर खानदानी बोलो ना हो। खानदानी भाई होगा ना, जब बहन हदिया देगी कबूल करेगा, बोलेगा भाई इसका तो बड़ा ज़र्फ है, पेट काट के हदिया दे रही है, डबल करके लौटाएगा वो। बोले ऐसे खानदानी लोगों पे तो खर्च करने का मजा आता है, भिखारियों पे खर्च करने में थोड़ी मजा आता है। मेरा अपना मामूल है, मैं बार बार कहता हूं भाई मिंबर पे बैठ के तारीफें नहीं करनी चाहिए, हम तारीफ के काबिल भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अप्रिशिएट करने के लिए ना बतानी पड़ती है ताकि लोगों को हौसला मिले। बाकी जाहिर है मैं इंसान अपनी खामियां थोड़ी बयान करता है, तो इसलिए ज्यादा ये ना समझा कि नहीं पता नहीं कितने पहुंचे हुए बुजुर्ग होंगे। मैं जब किसी को हदिया देने का इरादा करूं ना, और मुझे ये हो कि ये बेचारा मोहताज है और सफेद पोश है, फिर मैं जब उसको हदिया दूं और वो ना ले तो मैं उससे कहता हूं किसी के बाप में इंशाअल्लाह वो दम नहीं है कि मैं तुझे दे रहा हूं और तू ना ले। लड़ाई है, क्योंकि ऐसा आदमी हमें चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए। कमबख्त किसी को कोई चीज दे दो ना, वो ऐसे, वो मैंने बताया था ना एक मासी को 5,000 रुपए दे दिए मैंने कुछ दिन पहले, उसको बोला मोहतरमा यहां से पतली गली से निकल लो। मुझे पता था ये 500 मांग रही थी, हमने दे कितने दिए? 5,000, तो इसलिए कि बेचारी खुश हो जाए। मुझे अंदाजा था अब ये धरना मार के बैठ, वही हुआ, तो वो जा ही नहीं रही।
अगले दिन फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई, फिर घर में घुस रही है, फिर दिए पैसे, भाई जान छोड़ो। नहीं भाई, अब तो जितना दोगे उतना। मैंने कहा निकलो। सही है ना, सख्ती करनी पड़ती है फिर। या तो उसके घर जाओ के देखो कि वाकई मोहताज है या नहीं, तो फिर महाना बांध दे आदमी। भिखारियों को देने से मतलब तो ये होता है कि अब आप इसके भिखारीपन में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। तो इस्लाम आपको इसकी तरगीब थोड़ी दे रहे हैं कि लोगों को भिखारी बनाओ। इस्लाम तो कह रहे हैं लोगों को कारामत बनाओ। तो इज्जतदार लोग तलाश किया करे और गन पॉइंट पे उनको दिया करे। ये नहीं होता कि एक दफा उन्होंने कह दिया नहीं ऐसे, तो अच्छा चलो मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, फौरन लोग पता कैसे होते, चलो हमें नियत का सवाब तो मिल गया। दिया करो, बोलो तेरे बाप को भी लेना पड़ेगा ऐसी की तैसी। पहले सोचो कि देना किसको है। तलाश करो सफेद पोश लोगों को जो किसी से मांगते नहीं है, इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर इज्जत के साथ उनको दो। अब अगर वो कह रहे हैं नहीं भाई मेरे घर में जरूरत नहीं है, या भाई आप छोड़ो जरूरत है या नहीं, तुम्हारे बाप को भी। ये असल में बाप तक जब तक नहीं हो बात बनता, आप कहें लोग मुझसे पता नहीं क्या मेंबर बैठ के बाप बाप की बातें लगा के रखी हुई है, इसके बगैर चलता नहीं है ना मामला। ये जब बोलोगे तो फिर वो बोलेगा भाई ये तो तैश में आया हुआ है। तो हम लोग खुद भिखारी बना रहे हैं लोगों को। जो सफेद पोश है उनको देते नहीं है, और जो भिखारी टाइप के लोग हैं, हर भाई ये यहाँ से ये मिल जाए वहां से भी मिल जाए, उनको दे दे के और क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। यहाँ एक दफा कुछ मजदूर आए हुए थे, मस्जिद का गड़ा खोद रहे थे ना, रमजान में रोजा रख के कुआं खोद रहे हैं। मैंने उनकी हालत देखी, मैंने कहा यार ये वाकई मुस्तहिक है। ये क्या है, वाकई मुस्तहिक। तो मेरे पास रमजान में लोगों की तरफ से ज़कातें भी आती हैं, कुछ अपनी ज़कात भी थी। मैंने उनको कुछ पैसे घर बुला के बांट दी। खानदानी लोग थे, भिखारी और मंगते नहीं। एक उनमें मंगता निकला, सही है ना, बाकी तो दोबारा आए नहीं। जाहिर है वो तो कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से एक नेमत मिल गई, हम तो गड़ा खोद रहे थे और रोजा रखे तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत मिल गई। एक क्या था, मंगता। 2-3 दफा आया, मैंने कहा हो सकता है बेचारे को वाकई जरूरत हो। मैंने दोबारा ताउन कर दिया, क्योंकि बाज दफा होते हैं घरेलू हालात। फिर मैंने उसकी इंक्वायरी की, पता चला ये कमबख्त काम देगा नहीं करता, ये घुन्ना बन के हर जगह चला जाएगा, काम नहीं करता। इसका काम ही यही है कि मजदूरों के साथ बैठेगा, फिर जाके आपसे क्या मांगेगा, भीख। शो ये करेगा मैं भी मजदूर हूं। तो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि काम करने वाला आदमी मांगता नहीं है, उसको अल्लाह की तरफ से मिल जाता है, और जो मंगते होते हैं वो काम नहीं करते। तो अब जो उन मजदूरों को हमने पैसे दिए उनको भी खुशी हुई होगी ना, ये खुशी एतदाल की है। और ये जो मंगता है कमबख्त, इसकी खुशी हद से बड़ी हुई है, तभी ये बार बार आ रहा है। इसमें पैसे की लालच है, उनमें दौलत की लालच नहीं है। इतनी मोहब्बत है जितनी होनी चाहिए, ये जरूरी है, ज्यादा नहीं है, हवस नहीं है। तो भाई देखो, एक चीज का बहुत अच्छी तरह एहतमाम कर लो। अच्छा, पैसे से मोहब्बत की ये भी अलामत है कि आपके बुनियादी खर्चे पूरे हो रहे हैं और आपकी नजर दूसरे की जेब पर है। बुनियादी खर्चे आपके अगर पूरे हो, रोटी मिल रही है 2 वक्त की, सर छुपाने के लिए छत है। अब अगर आपकी नजर है कि उसके पास ताकि मेरी ये हाजत पूरी, ये दौलत की हवस है। यहां भी मैं अपना एक वाकया बयान कर देता हूं। मेरे पास एक साहब आए, चंद लाख रुपए थे उनके पास। ये वाकया भी 10-12 साल पुराना है। 2 लाख रुपए, 2 या 3 लाख रुपए, 10-12 साल पहले 2 लाख रुपए, ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, लेकिन इतनी कम वैल्यू भी नहीं थी जितनी आज है। तो वो जी 2007 या 8 की बात है, वो मेरे पास पैसे लेकर आए 2 लाख रुपए, और कहने लगे कि ये मेरे पास पैसे हैं, फिलहाल मुझे कोई इसका इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा आपको कर्ज दे दूं ताकि आप इस्तेमाल कर लो, जब मुझे जरूरत होगी तो मांग लूंगा, मुझे दे देना। मैंने कहा भाई अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। या तो मुझे कोई खाने को रोटी न मिल रही होती, सर छुपाने के लिए छत बोलो भाई ना होती। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है सुबह पराठे भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, दोपहर का खाना भी हो जाता है, उसके बाद 1 घंटा कैलूला होता है। कैलूले के बाद जब उठते हैं नींद से, कड़क सी खानदानी किस्म की क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, जो कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत सुट्टा क्या होता है इस्लाम में। मैंने एक डॉक्टर आए थे नफ्सियाती बहुत बड़े, तो मैंने उनसे कहा हजरत ये चाय इतनी खतरनाक चीज है, इसके खिलाफ बयान आप लोग डॉक्टर लोगों को चाहिए, एहतजाज करें। उन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब वो चाय उनके लिए मैंने मंगवाई ना, मैंने कहा आप लोग छुड़वाएं लोगों से। मैंने कहा हम तो छोड़ गए, फिर आप लोग को देख के पीना शुरू। उन्होंने कहा यार लोग गुटखा खा रहे हैं, चर्स पी रहे हैं ठीक, वो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, तो हमने एक चाय पी ली तो क्या हो गया। उन्होंने कहा नुकसानदेह है, लेकिन चर्स हीरोइन तो नहीं पी रहे ना। तो वो कहने लगे मुफ्ती साहब ऐसी बात करो जो मुआशरे में चलना भी तो है ना इतना ज्यादा नेक बनाने की जरूरत नहीं है। तो खैर नहीं पीनी चाहिए, बहरहाल अच्छी चीज नहीं है। तो खैर मैंने कहा भाई जब दोपहर सो के उठते हैं तो कड़क सी एक
चाय पीते हैं, वो दिमाग ये काकड़ दिन्ना हो जाता है। काकड़ दिन्ना न्यू कराची वालों से पूछे काकड़ दिन्ना होता क्या है, तो काकड़ दिन्ना हो जाता है, यानी बहुत ही तबीयत क्या हो जाती है, फ्रेश। फिर आदमी अपने काम काज करे, फिर जनाब जो है ना रात का खाना भी है, फिर बच्चे भी आराम से सो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों आपसे कर्जा लूं भाई, वापस कौन करेगा इसको, खर्च हो गए। और मैंने कहा देखो ये हमाकत मेरे साथ की है, किसी और सच्चे मुसलमान के साथ, झूठी मूठी का मुसलमान हो चलेगा, सच्चा मुसलमान हो मैंने कहा उसके साथ ये दोबारा हमाकत नहीं करना। नहीं समझ में आया उनके। उन्होंने एक और दोस्त से कह दिया यार फालतू पड़े हुए 6 महीने तक मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है, जरूरत आजकल दूसरे के पैसों से हर आदमी को है कि नहीं है? हर आदमी को 1 करोड़ रुपए भी आपकी जेब में ना, तो मुझे उसकी शदीद तरीन जरूरत है, अगर मुझे दे दो आप। क्या ख्याल है? बहुत सख्त जरूरत है। तो उन एक बंदे से पूछा, उसने कहा यार मुझे तो बहुत शदीद जरूरत है, मुझे तो बिजनेस में लगाना है, मैं आपको 6 महीने बाद दोबारा मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। वो दे दिए। मैंने कहा ये 6 महीने में अगर दे देना तो मेरा नाम बदल देना। जो दूसरों की जेबों पे नजर रखता है ना, वो कभी टाइम पे वापस नहीं, अगर इतना नेक होता तो लेता ही नहीं है। इतना नेक हो, अब ये नहीं कि कोई जरूरतमंद हो पैसे मांग रहा हो तो ना दे उसको, ऐसा नहीं है। जरूरतों में लोगों की मदद करना अच्छी बात है। अपने लिए उसूल बता रहा हूं, दूसरों के लिए तो ज़र्फ क्या रखना चाहिए, बड़ा। दूसरों के लिए तो बड़ा ज़र्फ रखें। अपने लिए बात कर रहा हूं, अपने लिए बोलो भाई मुझे दूसरों के पैसों से जरूरत नहीं है, जितनी अपनी जेब में बहुत है। उन्होंने दे दिए, वो नहीं निकले। अब वो लड़ाइयां हो रही हैं, अबे तू दे, वो कह रहा है कल परसों तरसों। मैंने कहा ये दे दे तो इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं है। अदालत नहीं निकलवा सकती। एक साहब के 1.5 करोड़ रुपए कोई लेके भाग गया। मैंने कहा अदालत में जाओ, कह रहे अदालत साफ साफ बोलेगी दिए क्यों थे। ये अदालत बोल रही होती है कि दिए क्यों थे भाई। तो ये भी एक हवस है कि आपकी जेब में जितना है उस पे कनाअत नहीं। हाँ, कारोबार के लिए किसी से पैसे लेना वो एक अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 2 लाख रुपए अगर कारोबार के लिए देते हो, जो कि हो उसमें, मैंने कहा कोई कारोबार 2 लाख में होता है नहीं। तो मैंने कहा 2 के अगर आप 20 लाख दे दो ना, तो मैं कोई बिजनेस कोई प्लॉट खरीदूंगा, महंगा हो जाएगा तो आधा आपका आधा मेरा, और अगर रकम डूब गई तो लिख के दो, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मुजारबत का उसूल है, स्टैम्प पेपर पे लिखवाऊंगा कि अगर ये प्लॉट डूब गया, चाइना कटिंग में आ गया, कुछ भी हो गया तो नहीं दूंगा, ये टेंशन नहीं हम पालते, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा। तो इसके लिए वो एग्री नहीं थे। तो कर्जा क्यों ले भाई बिला वजह? अल कर्जु मिक़राजुल महब्बा। उलमा कहते हैं कर्ज को, कर्ज पता है किसे कहते हैं? काटने को। कर्ज किसे कहते हैं अरबी में? काटने को। मिक़राज कर्ज से निकला, अरबी में कैंची को कहते हैं मिक़राज। तो कर्ज ये ना मोहब्बत की कैंची है। आपको किसी से कितनी मोहब्बत हो, आप चाहते हैं दुश्मनी हो जाए, उसके सगे भाई को गोली मार दें, इतनी दुश्मनी नहीं होगी। पैसे ले लें उससे, आप कर्जा ले लें, फिर देखो ऐसी दुश्मनियां होती हैं, देते नहीं लोग टाइम पे। तो ये भी माल की हवस है कि दूसरों की जेबों पे नजर। भाई जब तक कोई ला के दे भी रहा है तो नहीं लो। क्यों लूं भाई मैं, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। असल में लोग ये समझते हैं बहुत कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं यार बच्चों के स्कूल की फीसें नहीं जा रही, और आप कह रहे हो कि अल्लाह का दिया बहुत कुछ है भाई। गरीबों वाले स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप कहते हो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। गोश्त खा नहीं सकते, आप कहते हो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। तो असल में बहुत कुछ की डेफिनेशन में ही आपने बहुत कुछ नहीं है क्या? ये देखो इंसान की जो खुराक है ना वो बहुत महदूद है, अल्लाह हमें उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। आपने गरीबों को देखा सिर्फ रोटी खा रहे होते हैं, कोई बीमारी होती है उनको, फिट फाट सेहतमंद। ये जो उर्तुगल ड्रामा लोग देख रहे हैं ना सारा दिन घोड़े पे, ये वो, उस जमाने में कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल थे है भाई? कोई ये था कि सुबह 2 बॉयल अंडे, जो मैं तो ड्रामा नहीं देखता लेकिन जो देख रहे हैं मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उसकी खुराक क्या उर्तुगल की, क्या खा रहा है? सुबह मुतवाजिन नाश्ता। हमने साइंस की किताब में 7वीं क्लास में पढ़ा था कि मुनासिब नाश्ता क्या है, मुतवाजिन नाश्ता, वो साइंस का मजमून था। उसमें लिखा 2 टोस्ट, 1 पनीर और इतना मक्खन और इतने अंडे, ये एक बैलेंस क्या है, नाश्ता है। हमने आके अपनी वालदा को बताया, सही है अम्मी हमने स्कूल में पढ़ा है ये क्या है, बैलेंस, इसमें इतना पनीर होना चाहिए, इतना मक्खन। अम्मी ने कहा पराठा रखा हुआ है, खाना है खा, न पतली गली से निकल। गरीब लोग, हम गरीब नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी वालदा हमें छुई मुई नहीं बनाया उन्होंने। जो पका है खाएगा, तुझे खाना पड़ेगा। मेरी वालदा ऐसे गरम चिमटा दिखा, पराठे खा के जवान हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 शादियों का जज्बा ऐसे थोड़ी पैदा हो गया। अगर मुझे बताओ वो टोस्ट खाते रहते बैठ के, 2 बॉयल अंडे, डॉक्टर ने कहा 2 बॉयल अंडे हाफ फ्राई, या हाफ फ्राई हो गए या बॉयल हो, और फिर पनीर की 100 ग्राम है, 100 ग्राम पनीर और मक्खन, उसमें विटामिन ए के लिए फलानी चीज, और बी के लिए, B+ के लिए ये, C के लिए
कुछ भी सी के लिए कुछ भी लेमन, सही है ना। अरे टोपी ड्रामों में लगे होते, 4 शादियों का शौक पैदा होता, हो ही नहीं सकता। पराठे खाओ, चाय पियो, पतली गली से अंडा मिले ठीक है, ग्रेवी है, नहीं मिले तो भी ठीक है। मैंने मजदूरों को देखा है, इतनी मेहनत करते, दोपहर खाने में हमने घर में बोरिंग के लिए ना एक मजदूर को बुला लिया, वो कमबख्त हाथ से बोरिंग करने लगा। अरे मैंने कहा भाई हाथ से कैसे करेगा, वो इतनी मशीन उठा रहा था ना वो हाथ से और मिट्टी के साथ। तो मेरा दोस्त भी था, हमने कहा यार ये आदमी है जिन है। दोपहर खाना खाया, सिर्फ रोटी खा गया बस वो पानी के साथ, और फिर खड़ा हो गया। हमने कहा यार ये ना इनको सेब खाने को मिल रहा है, ना कोई विटामिन A, B+ की गोलियां और कुछ भी नहीं, ना मछली, एक रोटी खा रहे। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने का मेरे भाई, हाँ अल्लाह ने पैसा दिया फिर खाओ, नहीं दिया, रोटी में अल्लाह ने दुनिया की हर ताकत रखी है, जब दिया है तो फिर बादाम भी खाओ, घी भी खाओ। तो जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, लंबी हो गई बात, काफी दाएं बाएं चली गई ये बात। तो मेरे भाई दिल को 2 चीजों से पाक करना है, पैसे की मोहब्बत और इज्जत, तकब्बुर जिसे कहते हैं, बड़ा बनने का शौक छोड़ो यार। जितनी इज्जत बनती है ना उतनी अल्लाह वैसे ही दे देता है। खुद से इज्जत हासिल करने की कोशिश मत करो मसनूई तरीके से कि लोग मुझे इज्जत दें, ना 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 ना। अल्लाह को तवाज़ो पसंद है। आपका जो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है, आप ये समझो कि मैं इस मकाम के लायक नहीं था, तो इससे इंसान में तवाज़ो रहती है। आज मकाम छोटा होता है, समझता है कि मेरा मकाम होना वहां तक चाहिए था। इससे फिर जब आप लोगों से एक इज्जत चाहते हैं और वो मिलती नहीं है, तो इंसान किस में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। तो मुसाफिर खाना जब समझोगे मेरे भाई दुनिया को, तो फिर क्या होगा, ना दौलत की मोहब्बत रहेगी और ना उसकी जाह की मोहब्बत। और देखो इंसान जो है ना, ये इसकी अल्लाह ने एक फितरत बनाई है कि ये इज्जत को दौलत पे तरजीह देता है, ये इंसान की नेचर है। अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये इंसान है नहीं। तो जिसके दिल में लालच होती है ना, सबसे पहले उसकी इज्जत खत्म होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सखी है वो अल्लाह के भी करीब होता है, लोगों के भी करीब होता है और जहन्नम से दूर होता है। यानी अल्लाह भी मोहब्बत और लोग भी क्या करते हैं, सखी होना इसकी अलामत है ना कि दिल में पैसे की मोहब्बत है नहीं, खिला रहा है लोगों को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कंजूस है ना, बखील, वो लोगों से भी दूर और अल्लाह से भी दूर और जहन्नम के करीब, जन्नत से भी दूर। तो अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं और लोग भी मोहब्बत करते हैं। तो सखावत दिखाओ मेरे भाई। और मैं जल्दी से बात को समेटूं, कभी भी दूसरे की जेब पे नजर मत, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग अपनी आमदन आपको बताते हुए घबराए नहीं। समझ रहे हो, ये अल्लाह ने मेरे साथ एक मामला किया है कि बड़े बड़े सेठ आते हैं, हालांकि बाज दफा तो मौलाना साहब को आमदन बताते हुए लोग डर रहे होते हैं कि ये चंदा ना मांग लें, वो बेचारे अपने लिए नहीं तो मदरसे के लिए मांग रहे होते हैं ना। मेरे साथ अल्लाह का मामला ऐसा है, मुझे लोग आमदन बताने में हिचकिचाते नहीं, आगे बता रहा था असल में ये है, इतना कमाता हूं रोज। उनको पता होता है इंशाल्लाह मौलाना साहब की हमारी जेब पे नजर। उलमा तो जाहिर है किसी की जेब पे अपने लिए तो करते नहीं ना, अपने मदरसे के लिए कर रहे होते हैं, मस्जिद के लिए करवा दो, तो हमें वो भी नहीं करता मैं, क्योंकि हमारे हजरत ने ना इस मामले में हमें ऐसा बना दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की को बिल्कुल मायूस कर दो और लोगों से बिल्कुल मायूस हो जाओ। चंदा करना है खुलेआम ऐलान, ताकि जो आदमी करना चाहे कर ले भाई खुलेआम। अभी हमने राशन के लिए चंदा किया ना, बताया था भाई, अब किसी स्पेसिफिक किसी खास आदमी को मैंने फोन नहीं किया। मेरे जान पहचान वालों में करोड़पति ताजिर हैं, ऐसे ताजिर भी हैं कि आपके होश उड़ा दूं उनके मैं बताऊं कि कितना कमाते हैं वो। एक ताजिर आए थे मिलने के लिए, पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मेरा नाश्ता स्पेन से आता है, समझ रहे हो, स्पेन का पनीर अच्छा है, पनीर कहां से मंगवाता हूं। वो आए थे मेरे पास कि यार कोई रिश्ता बता दें। मैंने कहा मैं तो रिश्ते मिश्ते कराता नहीं भाई, सही है ना। तो अब उनसे गपशप हो गई, तो मैंने कहा वैसे बाय द वे किस किस्म का, उन्होंने कहा इस किस्म का उन्होंने कहा मेरे पास अल्लाह का दिया पैसा बहुत, तो गरीब लड़की मेरे साथ चल नहीं सकती। ऐसी हो कि मैं जब मूड होता हूं तो स्विट्जरलैंड चला जाता हूं, फला जगह चला जाता हूं। फिर उन्होंने अपने असासे बताए, मैंने कहा ये तो हटो बच्चों हो गया। और जवान आदमी 30 साल की उम्र में इतना पैसा, तो मैंने कहा यार मैं आपसे ज्यादा मालदार हूं। हम तो अल्लाह का शुक्र है, एहसासे कमतरी तो अल्लाह का फजल है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह मुब्तला हो ही नहीं। कभी किसी को देख के मेरे ज़हन में अबे अल्लाह ने इतना पैसा दे दिया, यार तारिक साहब ये क्या है यार, ये क्या हो रहा है। लोग ये सोचते हैं ना, अपनी चीजें फिर आदमी को अजीब सी लगती है ना। हमने ऐसा खानदानी काम किया, कोई पैसे की शो मारे,
तो फौरन एक जवाब देता हूं, मैंने कहा बीवियां कितनी हैं? क्या एक? मैंने कहा हमारे यहाँ से पैसा है, स्विट्जरलैंड स्पेन से तुम्हारा पनीर आ रहा है, शायद स्विट्जरलैंड से आ रहा है, बीवियां कितनी है? एक। तो वो कहते हैं आपकी। मैंने कहा 3। कहते हैं साहब हम पैसा होगे भी क्या है गरीब। मैंने क्या मैंने कहा देखो नाश्ता क्या पनीर स्पेन से खा लो या इधर से दुकान से खरीद के खा, क्या फर्क होगा? क्या टेस्ट में कितना फर्क हो जाएगा भाई? है पनीर ही है ना, घी खा लो वहां का खा लो, हमारी भैंस ज्यादा अच्छी है भाई। तो खाना कितना खा लेगा? तो आजकल तो अल्लाह ने गरीब को भी सब कुछ दिया हुआ है खाने के लिए। मैंने कहा ये क्या है? जहाज में बैठ के वहां चले गए। मैंने कहा क्या, तो हमें भी जब जाना होता है जहाज में चले जाते हैं, नहीं तो ट्रेन में चले जाएंगे, नहीं तो आदमी बस में चला जाए। तो क्या है ये? तो खैर अब देखो क्या होगा उनके साथ, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो बताते हुए लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनको डर